So today we are going to start constraint relationships. So pulley related problems. So constraint relation होता क्या है पहले तो वो जानेंगे and then we'll use this constraint relation to solve the pulley related problems. So constraint means, if the length of the string is constant, then for us that constraint relation is that length of the string has to be constant, and we use that to find the relation between the displacement of the two blocks which are attached by a single string, or the velocities of the block which are attached by a single string, or the acceleration of the block attached by a single string. So the motion of a body is influenced by the forces acting on it as well as by the geometrical constraint imposed on it. So as shown in the figure above, two blocks M1 and M2 are connected together by an inextensible string. So when block is pulled by a horizontal force F, it cannot accelerate alone because it is attached to block M2 with a string. Now, since the string is inextensible, therefore the rightwards displacement of block M1 and M2 are equal. So let's say we have two blocks, दो blocks हैं हमारे पास M1 और M2, और इनको किसी फोर्स F के साथ हम पुल कर रहे हैं एक डायरेक्शन में. अब ये दोनों जो है दे आर अटैच्ड बाय ए स्ट्रिंग, बीच में एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लगा हुआ है. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब उसमें एक्सटेंशन नहीं होगा खींचने पे, तो इसका लेंथ कांस्टेंट है. तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना डिस्प्लेसमेंट m1 का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट m2 का होगा, राइट. अगर ये x डिस्टेंस मूव किया है तो ये भी x डिस्टेंस मूव करेगा. So when block is pulled by horizontal force F, it cannot accelerate it alone because it is attached to block M2 with a string. Since the string is inextensible, therefore rightward displacement of block M1 and M2 are equal. तो ये जो displacement है rightward M1 M2 दोनों का both are equal. Now both the blocks accelerate equally in the same direction. Hence motion of M1 and M2 are constrained by string. Because they are moving in the same direction, the motion is constrained by a string. Motion is constrained by a string as in कि whatever there is a relationship between the motion of block M1 and M2, and that is being constrained by a string, है ना. मीन्स वो स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग के वजह से दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों का मोशन. सो कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन इज length of string is constant. The relation here is that the length of the string needs to be constant. So we can conclude that constraint relation is a relation between displacement, velocity or acceleration of different masses connected in some way that one must think of whenever one finds the number of equation less than the number of unknowns. तो ये जो constraint relation है ये क्या है, relation है. किनका क्या चीज का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट masses which are connected in some way either by a string or any way, right. So ये जो रिलेशन निकाल के हमें बताता है, रिलेशन बिटवीन द displacements of two masses or velocities of two masses or acceleration of two masses, this relation is known as constraint relation. अब जैसे यहाँ पे तो सिंपल है कि भाई अगर m1 का डिस्प्लेसमेंट x है तो m2 का भी डिस्प्लेसमेंट x होगा. m1 का किसी मोमेंट पे अगर वेलोसिटी v है तो m2 का भी वेलोसिटी v होगा. m1 का एक्सेलरेशन अगर a है तो m2 का भी एक्सेलरेशन a होगा. निकलता कैसे है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकल जाएगा. तो इन दिस वे यू कैन रिलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स m1 and m2 with their velocities at any instant of time with their acceleration, and this relation is known as constraint relation. Is it clear to everyone? Now locate the position of each block from a fixed reference point or line. तो इसका स्टेप क्या होता है constraint relation लिखने का? पहला स्टेप है कि यू हैव टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ईच ब्लॉक. सो जो अलग अलग ब्लॉक है फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट और लाइन. मान लो यहाँ पे एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इसको मानते हैं, तो इससे इसका ब्लॉक का डिस्टेंस और इस ब्लॉक का डिस्टेंस, इससे हम लोग हमेशा फिक्स्ड एक पॉइंट से ही हम लोग डिस्टेंस निकाल के कॉन्स्टेंट रिलेशन निकालते हैं.
Identify the constraint and write down the equation of constraint in terms of distance. तो distance के term में constraint relation लिखेंगे, बाद में उसी को differentiate और double differentiate करके velocity और acceleration का relation निकालते हैं. Now we'll do few examples and see how to apply these constraint relationships. So let us see, this is a very simple case. So see, consider figure below shows two masses m1 and m2 connected through an inextensible string passes over an ideal pulley. So ये inextensible string है and they are passing, मतलब ये जो mass है एक string के साथ attached है, right? So this is the string, ये पुली के ऊपर से जाके दूसरी तरफ दूसरे mass से attached है, तो एक m1 block हो गया, m2 block हो गया. Now find the relation between acceleration of m1 and m2. We have to find the relation between the acceleration of the two blocks. So now we will use these steps basically. So ये देखो हम लोग का जो fixed position है, वो fixed position को ये पुली का जो position है ये change नहीं कर रहा है, right? मतलब पुली का पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है, मतलब ये पुली भी फिक्स्ड है, तो हम लोगों ने एक लाइन ये ले लिया, इससे सारे डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं. सो डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक m2 इज x2 एंड डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक m1 फ्रॉम द फिक्स्ड पोजीशन इज x1, राइट? और ये जो स्ट्रिंग इसके ऊपर है ना, ये तो कांस्टेंट ही है, राइट? ये चेंज नहीं करेगा, हर मोमेंट ऑफ टाइम पे ये कांस्टेंट रहेगा. चेंज क्या करेगा? अगर ये m1 नीचे आ रहा है तो m2 ऊपर जाएगा, तो ये x2 का वैल्यू चेंज करेगा और x1 का वैल्यू चेंज करेगा, है ना? सो these are the two things which are going to change. The x1 distance, which is from the fixed position, x1 is the distance of m1 from the fixed position, and x2 is the distance of m2 from the fixed position, and these distances changes. Now if we have to write the the first step was to locate the position of each block from a fixed reference. So this is our reference line. Okay, from this reference line we are going to find the distance of m2. So this will be x2 plus x1, and this ये जो ऊपर वाला जो चीज है इसको हम लोग कांस्टेंट ही मान लेते हैं. इस बार लिख रहे हैं, आगे हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना? प्लस मान लो ये जो ऊपर जो इसके ऊपर जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो c है, इज इक्वल टू l, दैट इज कांस्टेंट. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. सो इससे हमारा जाएगा x2 प्लस x1 इज इक्वल टू l माइनस c. दिस होल थिंग इज अ कांस्टेंट. ठीक. सो नाउ what we'll do, we'll differentiate it. So इससे हमारा क्या आ गया? x2 plus x1 is equal to some constant c, right? तो अभी तो हम लोगों ने l minus c और ये सब लिखा है, आगे हम लोग हमेशा x2 plus x1 is equal to length of string which is constant लिख लेंगे. अब अगर हम लोग को इनका रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी इसका, differentiating both sides with respect to time, so we will get dx2 upon dt plus dx1 upon dt, differentiation of constant c with respect to t. So differentiation of x2 with respect to time t, so this is v2. x1 with respect to time t is v1. Differentiation of a constant with respect to time is equal to 0. So this will give us v1 plus v2 is equal to 0. Now again differentiating with respect to time, तो ये हमारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v1 को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो a1 आएगा, v2 को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो a2 आ जाएगा, राइट? सो dv1 by dt प्लस dv2 by dt इज इक्वल टू 0. 0 का डिफरेंशिएशन जो 0 ही होता है, तो a1 dv1 upon dt is a1 plus a2 is equal to 0.
सो इससे क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू माइनस a2. नेगेटिव साइन बस इसके साइन इसके डायरेक्शन को बता रहा है. a1 अगर नीचे पॉजिटिव ले रहे हैं तो a2 ऊपर नेगेटिव हो रहा है, ये चीज नेगेटिव साइन बताता है. बट जब हम लोग एक्सेलरेशंस लिख रहे होते हैं तो हम लोग साइंस का ये नहीं करते हैं, हम लोग बस उसके मैग्नीट्यूड का के बारे में बात करेंगे कि a1 का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a2. तो अगर हम लोग इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ मानते हैं तो इसका एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ होगा. सो रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 इज दैट a1 mod of a1 means absolute value of a1 is equal to absolute value of a2 is equal to acceleration a. So if we say the magnitudes are same and the directions are opposite. So this is the relation between acceleration of block m1 and block m2. Is it clear? Clear बच्चों? Yes, sir. तो ये कांस्टेंट रिलेशन हो गया इसका. अब अगर हम लोग दूसरे पे चलें, दूसरे एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें कि कांस्टेंट रिलेशन देखेंगे. यहाँ पे जो कांस्टेंट रिलेशन की बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ 3 masses m1, m2 and m3 are shown. Find the relation between acceleration of each mass. So we have to find the relation acceleration of each of these masses. So let's say, so first of all एक फिक्स्ड पोजीशन से सबका डिस्टेंस निकालते हैं. तो लेट्स से ये जो है ये फिक्स्ड पोजीशन हो गया. इससे अगर हम लोग इसका डिस्टेंस निकालें, लेट्स से द डिस्टेंस ऑफ दिस ब्लॉक इज x3, डिस्टेंस ऑफ दिस ब्लॉक is equal to x2, distance of this pulley is x0 and distance of this is x1. Okay. Now if you have to write, see this length and this length is constant, length of this whole string which starts from here and goes to this pulley is constant. So for upper string, so we'll have two relation. Why? Because there are two strings here. So for upper string, when we write the constant relation, we have x3 plus of x0 is equal to constant. मान लो L1 इसको कर लेते. Now double differentiating, so if we double differentiate, we will get, या इसको अभी रहने दो, एक साथ ही करेंगे. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. फिर फॉर लोअर स्ट्रिंग, सो ये जो है लोअर स्ट्रिंग है ना, इसका जो लेंथ होगा, अब देखो यहां से इसका जो लेंथ, देखो हम लोग तो हमेशा फिक्स्ड पोजीशन यहां से डिस्टेंस करते हैं, राइट. तो ये जो इसका जो लेंथ है ये x2 माइनस x0 कर देंगे तो लेफ्ट साइड वाले स्ट्रिंग का लेंथ निकल जाएगा. पूरा x2 में से x0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो x2 माइनस x0 ये लेफ्ट साइड में और x3 माइनस x0 ये राइट साइड में. ठीक है. सो x2 माइनस x0, सॉरी x3 कह रहे हैं, x1. This is x1 na? x1 minus x0 is this distance, right? So this distance will be x1 minus x0 and this distance is x2 minus x0. So x2 minus x0 plus x1 minus x0 is equal to constant, right? Now if we add this, we will get x1 plus x2 minus 2x0 is equal to length L2, the second string ka length. This is constant. This is our second equation. Okay.
नाउ इस दोनों इक्वेशन में से ना x0 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो x0 यहाँ पे क्या है, L1 माइनस x3 है, यहाँ से x0 इज इक्वल टू L1 माइनस x3 आ जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, तो x1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम्स L1 minus x3 is equal to L2. So this is using both the equation from 1 and 2. What we have done, we have replaced the value of x0 here. So what we are going to get is x1 plus x2 minus 2 times L1 plus 2x3 is equal to L2, or x1 plus x2 plus 2x3 is 2L1 plus L2, है ना। अब ये पूरा चीज तो कांस्टेंट है, डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं अब इसको, डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस, सो व्हेन यू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस you will get a1 plus a2 plus twice a3 is equal to 0, because this whole thing is constant. So if you differentiate it with respect to time, you will get 0. So a1 plus a2 plus twice a3 is equal to 0. This is the relation between a1, a2 and a3. Okay, so this is your constant relation for acceleration. Okay, we had to find the relation between acceleration of each mass, so this is the relation between acceleration of each mass. Is it clear? क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। Now the next one, consider a system of two blocks A and B, right, connected together with an inextensible string as shown in figure. So we have these two blocks A and B, they are connected by this inextensible string. इस तरह से connected. Now determine the relation between their acceleration. तो इसका acceleration A होगा और इसका acceleration AB होगा. इन दोनों के बीच के acceleration का relation हम लोग को निकालना है. Let's say ये नीचे इधर जा रहा है और इसका acceleration इधर होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का acceleration हम लोग को ये निकालना है। तो देखो ये पहले ना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो इसमें भी कांस्टेंट रहना है, तो हम लोग का जो फिक्स्ड पोजीशन है वो फिक्स्ड पोजीशन ये मान लेते हैं, ये हम लोग फिक्स्ड पोजीशन मान लेते हैं, मतलब इस पुली का जो पोजीशन है इसको फिक्स मान लेते हैं। अब इसके जो ये वाला पार्ट है, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है इससे ये x से हो गया, राइट। उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस हो गया है ना, इसका जो डिस्टेंस है, लेट्स से इसको ये डिस्टेंस एक्स बी मान लेते हैं, तो इधर भी ये डिस्टेंस एक्स बी हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्योंकि यहां से ये जो है ना, ये लेंथ कभी भी चेंज नहीं करेगा इस पोजीशन से इधर। ये जो फिक्स्ड पोजीशन हमने बनाया है स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर वाला जो यहां तक जो डिस्टेंस है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। सो अब हमारा रिलेशन क्या है, कांस्टेंट रिलेशन, एक्स से प्लस एक्स बी प्लस सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल। सो इससे क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू एल माइनस सी। सो दिस इज द कांस्टेंट रिलेशन। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी is equal to 0. So this will give you
acceleration of A is equal to minus of twice acceleration of B. मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो acceleration of A is equal to 2 times acceleration of B का मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो साइन तो बस उसका ये कहता है कि ये जो इसका डिस्टेंस जो है टाइम के साथ लेस हो रहा है ना, तो इसीलिए डिसेलरेशन हम मानते हैं, और ये जो है डिस्टेंस इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, इसीलिए प्लस है. तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ये प्लस और माइनस आ रहा है, बट मैग्नीट्यूड से हमें बस रिलेशन है. तो अगर इसका एक्सेलरेशन हम लोग मानते हैं a, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन a मानेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ a इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b, या फिर उससे अच्छा इसका एक्सेलरेशन अगर a नीचे की तरफ मानेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2a हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस. ठीक है, उसको निकालने का एक और तरीका है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab और ट्वाइस ऑफ a, है ना, वेयर Excuse me, sir. is equal to a. हाँ जी. Sir, if we take acceleration of B as A, then acceleration of A will be A by 2. Okay. How come this ये दिख रहा है आपको? Acceleration Yes, sir. of B is A, तो ये A by 2 हो जाएगा. Yes, sir. अच्छा जी, तो acceleration of B यहाँ पे 2 into A डालोगे तो ये acceleration of A 2A आएगा, A by 2 आ जाएगा. क्या बोल रहे हो तुम? ये बोल रहे हो कि ये इक्वेशन गलत है? No, sir. फिर सर उसका 2A लिया ना आपने, तो इसका A लिया है तो इसका 2A लिया है, एक्सेलरेशन ऑफ B का A लिया है और इसका 2A लिया है. ओके. उसी को रिमूव कर, पहले इसको A ले रहे थे बट उसको रिमूव कर दिया क्योंकि ये A by 2 आता है, फ्रैक्शन में आता है, इसीलिए इसको A माना और इसको 2A माना, इसका डबल हो जाएगा. एक्सेलरेशन ऑफ B को A लिया है, एक्सेलरेशन ऑफ A को ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B हो जाएगा. ओके. अब इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये तो कॉन्सेप्ट है जो कि कभी भी फेल नहीं करेगा, मतलब दिस इज समथिंग विच इज द बेसिक ऑफ यू नो रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स. अगर आप लोग को मतलब समय बचाना और इतना नहीं लिखना चाहते हो तो एक और तरीका है उसको करने का, जो कि हम लोग हमेशा से बताते रहे. हाँ जी. तो जैसे हम जो मास फ्लोर से कांटेक्ट, ग्राउंड से कांटेक्ट में रहता था, तो उसका हम एन कैप वेक्टर रहते थे, तो इसमें उसका कोई रोल नहीं रहेगा? नहीं, एन कैप का रोल इसके एक्सेलरेशन पे नहीं आएगा ना बेटा. जैसे ये mg हो गया, ये n हो गया, ये दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में है. मोशन इसका किधर हो रहा है? इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है. तो हम लोग का mg और n रोल में आएगा तो mg इज इक्वल टू n होगा, अगर हम लोग को कोई फ्रिक्शन नहीं है तो अभी तो हम लोग बिकॉज फ्रिक्शन चैप्टर नहीं किए हैं तो हम लोग फ्रिक्शन को नहीं कंसिडर कर रहे हैं. अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं. जब फ्रिक्शन आ जाएगा तब एक फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा, तो वो जो फ्रिक्शन आएगा उसको हम लोग लिखते हैं फिर कि F इज इक्वल टू म्यू इंटू ए, बट वो आगे हम लोग ऐड करेंगे इसी कॉन्सेप्ट में. तो एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखते हैं. पहले जैसे देखो रिलेशन सीखेंगे, उस रिलेशन के साथ फिर फ्रिक्शन भी लगा देंगे, तो वो धीरे धीरे चीजें और कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे. ठीक है, तो अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो म्यू एन का कोई रोल नहीं है, और म्यू एन का कोई रोल नहीं है मतलब एन का भी कोई रोल नहीं है. टेंशन टी एक आएगा और ये एक फ्रिक्शन नहीं है. टेंशन टी इज इक्वल टू एम ए डायरेक्टली हम लोग लिखे. हम लोग अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस्ड ना. अभी तो हम लोग बस एक्सेलरेशन का रिलेशन सीख रहे हैं. एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी, इनका रिलेशन सीख रहे हैं. अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैं बता रहा था कि बिना कॉन्स्टेंट रिलेशन लिखे हुए कैसे कर सकते हैं. तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पुली को थोड़ा शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ. अगर पुली को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ऊपर की तरफ, तो कितने से शिफ्ट किया? लेट्स से तुमने पुली को x डिस्टेंस से शिफ्ट किया, तो अब एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ, ये भी x वाला खुल गया और ये भी x वाला ढीला हो गया. मतलब अगर तुम पुली को यहाँ लेके आ गए तो दोनों तरफ का जो स्ट्रिंग है वो ढीला होके खुल गया, मतलब इट इज नाउ, है ना, दिस इज नॉट टाइट नाउ. तो कितना लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग
मौजूद है अब यहाँ पे, x इधर और x इधर. So this is the extra amount of string which is available if you move this pulley by a distance x upward. So that extra amount of string, if we have to tighten it again, so we will have to move this block by a distance of x plus x, 2x distance, so that this string again becomes tight. ये समझ में आया सबको क्या मैं बोल रहा हूं? अगर Yes, sir. आप पुली को x डिस्टेंस ऊपर लेके जाओगे तो दोनों तरफ का स्ट्रिंग x और x खुल जाता है, और इस स्ट्रिंग को वापस टाइट करने के लिए आपको इस ब्लॉक A को 2x डिस्टेंस लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा. So that means that if there is a displacement of x here, the displacement of block A will be 2x. इसका मतलब क्या हो गया? If there is an acceleration of A here, the acceleration here will be 2a, डबल डिफरेंशिएट करके. Did you understand? So that means acceleration of block A is equal to twice of acceleration of block B. You can directly write it without doing that constraint relation वाला concept. समझ में आया बच्चों सबको? Yes. ओम Yes, sir. और ओम आपको भी आया समझ में? ओम और जय शिव शंकर, Yes, sir. है ना? चलो बहुत बढ़िया. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. अब हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे. हम लोगों ने नॉर्मल रिलेशन सीख लिया, एक और कांस्टेंट रिलेशन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. सो यहां पे आप लोग खुद निकाल के मुझे बताओ. यू हैव टू टेल मी द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी यूजिंग अ कांस्टेंट रिलेशन. Excuse me, sir. यस, तो ये जो पॉइंट ऐसे ये रिजिड है. ये पॉइंट फिक्स्ड है. ये वाला जो पॉइंट हो गया ना, ये फिक्स पॉइंट. इसके साथ ऐसे स्ट्रिंग लगा है, ये स्ट्रिंग घूम के इधर गया है, और वही स्ट्रिंग इधर से घूमकर इस पे जाके अटैच हो. आगे समझ. अब आप देखो, नॉर्मल समझो. आप अगर इसको इधर खींचोगे, राइट, तो ये स्ट्रिंग खींचेगा, ये स्ट्रिंग खींचेगा, तो ये भी खींचेगा, और ये तो फिक्स्ड है. तो इससे क्या होगा? ये ब्लॉक ए भी इधर मूव करेगा, राइट. तो अब ये क्या रिलेशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में, वो हम लोग को निकालना. Excuse me, sir. यस, तो ये जो डिस्टेंस है ब्लॉक बी की ऊपर वाली स्ट्रिंग में, जो अपनी पुली है सेकंड वाली, थोड़ी सी डिस्टेंस है, वो नेग्लिजिबल है क्या? हाँ, उसको नहीं हम लोग कंसीडर करते हैं. मतलब ये तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा ना ये डिस्टेंस. आप बस इसी को कंसीडर करो. ये एक्स बी हो गया, ये भी एक्स बी हो गया, ये एक्स ए हो गया, ये एक्स ए हो गया, और ये एक्स बी हो गया. Sir, AB equals to minus 2 by 3 VA. Sir, क्या बेटा? ए A of B equals to minus 2 by 3 एक्सेलरेशन ऑफ ए. सही है, सही है.
किसने किया? ओम ओम ने किया या फिर जयशंकर ने किया? ओम। ओम ओम ज्यादा होशियार है क्या भाई साहब? चलिए, अब ये जो फिक्स्ड पोजीशन है एस, फ्रॉम दिस फिक्स्ड पोजीशन लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस. पहले तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखना शुरू करते हैं. एक्स ऑफ बी इधर, फिर ये एक एक्स ऑफ बी ये वाला पोर्शन आ गया, राइट? ये भी एक्स ऑफ बी हो गया, ये भी एक्स ऑफ बी हो गया, ये एक्स ऑफ ए, ये एक्स ऑफ ए, और ये एक्स ऑफ बी. So plus of x of a plus x of a plus x of b is equal to length L constant. So this is the constraint relation. अब xb plus xb plus xb कितना हो गया? 3 times xb. xa plus xa ये क्या हो गया? Twice of xa is equal to L. अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो thrice of acceleration of b plus twice of acceleration of a is equal to 0. Or we can say acceleration of A is equal to minus thrice acceleration of B, or acceleration of A is equal to minus 3/2 acceleration of B. है ना? इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि acceleration of B is minus 2/3 acceleration of A. अब हम लोगों ने बोला कि भाई इसका बस मैग्नीट्यूड बताओ, तो acceleration of A is equal to 3/2 acceleration of B. मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर हम बात करें तो मतलब कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 3/2a हो जाएगा. क्लियर बच्चों? क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Betsy, now I am using more of Hindi it seems, so I hope you are not having a problem. You are able to understand, right? Yes, sir. Yeah. I'm sorry because I'm teaching two different geographic location. One in a remote location in Bihar and other in Oman. So there's no match only. So that's why I have to balance both. Huh? Wherever you find it difficult, please ping me and let me know. Okay? Yes, sir. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next, let's move to the next one. सतप्रीत आ गया था ना समझ? यस सर. हाँ ठीक है. ये जो जितने ये पुली वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको एटवुड मशीन भी कहते हैं. मतलब जब ये इनका एक्सेलरेशन होता है, ये मान लो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, इस तरह के सेटअप को हम लोग एटवुड मशीन कहते हैं. So an Atwood machine is a basic physics laboratory device often used to demonstrate basic principle of dynamics and acceleration. The machine typically involves a pulley, a string, and a system of masses. Now, as shown in the figure below, A and B are two bodies of masses m1 and m2, right? So we have two bodies A and B whose masses are m1 and m2 respectively, suspended by means of a light string passing over a smooth pulley. तो देखो स्मूथ पुली मतलब फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो जितना टेंशन इस तरफ होगा स्ट्रिंग के उतना ही टेंशन इधर होगा. दूसरा मासलेस पुली है, मासलेस स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग मींस मासलेस स्ट्रिंग, तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है, राइट? ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है. ओवर अ स्मूथ पुली बी P, let m1 be greater than m2. अगर इस वाले ब्लॉक का मास इससे ज्यादा है तो ये ब्लॉक का टेंडेंसी नीचे जाने का होगा और इस ब्लॉक का टेंडेंसी ऊपर आने का होगा, बिकॉज जिसका मास ज्यादा ब्लॉक उधर मूव करेगा. So if string is light and continuous, a tension T exists all along the string. So this tension T remains the same. Now suppose A has a downward acceleration A. अब देखो ये हम लोगों ने ये तो इसका कांस्टेंट रिलेशन किया ही था, पहला कांस्टेंट रिलेशन यही किया था, और ये ऐसे भी बड़ा सिंपल है, दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है. सो इफ दिस इज गोइंग डाउन बाय एन एक्सेलरेशन ए, दिस विल कम अप बाय एन एक्सेलरेशन ए. ठीक है, ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से और ये ऊपर आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, राइट? तो अब हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं तो लेट्स से हमारे पास ये ब्लॉक ए है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो इसमें नीचे फोर्स लग जाएगा m1g
और ये टेंशन टी इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये टेंशन टी, बट इवेंचुअली ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, m1g माइनस टेंशन टी इज इक्वल टू m1a। अब ब्लॉक बी पे अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ब्लॉक बी का मास m2g नीचे है, टेंशन टी ऊपर है, और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब टेंशन टी बड़ा है, तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, राइट। ना दूसरा रिलेशन, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो एक ऊपर की तरफ, ये देखो टी डैश से ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, और इसके नीचे दोनों तरफ टेंशन टी और टेंशन टी है। अब ये बिकॉज पुली मासलेस है ना, लाइट पुली है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस टी, और इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो t प्लस टी इज इक्वल टू टी डैश, और 2t इज इक्वल टू टी डैश। Okay, so these are the three relations. This is the third relation, this is the first relation, this is second relation. Now let's say we have to calculate the acceleration. What we'll do, we are going to add these two. Add करने से these tensions will get cancelled. ये दोनों टेंशन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी प्लस टी। अब m1g और माइनस m2g, मतलब m1 माइनस m2 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a। सो इसका मतलब a का वैल्यू इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया, ठीक है। और अगर आपको बोला कि टेंशन टी भी निकाल के बताओ, तो आप क्या करो, ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और टेंशन टी का वैल्यू निकालने, या सेकंड इक्वेशन में कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो हम लोग सेकंड वाले में डालते हैं, तो t इज इक्वल टू m2g प्लस, माइनस m2g को राइट साइड लेके आ गए, तो t इज इक्वल टू m2g प्लस m1g माइनस m2g बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब जो t का वैल्यू है, t इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g प्लस m1g माइनस m2g, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर बच्चों? ये m2g इज इक्वल टू m2a था ना, तो यहाँ पे m1 m2 भी होगा और m2 स्क्वायर भी होगा। बेसिकली ये m2 इंटू a था, तो t माइनस m2g, राइट, तो प्लस m2g उधर लेके चले गए थे, है ना, t इज इक्वल टू m2g, और ये m2 इंटू a था, तो ये पूरे a में m2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो m1 m2 माइनस m2 स्क्वायर। हाँ बेटा, टेंशन वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। अच्छा, मैं फ्रेश पेज पे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे थे, एक्सेलरेशन का जो हम लोग को वैल्यू आया था, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। अब जो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन था, उसमें था t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, तो t का वैल्यू क्या हो गया, m2g प्लस m2a। a का वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो t इज इक्वल टू m2g प्लस m2 इंटू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g। सो t इज इक्वल टू एलसीएम अब हम लोगों ने ले लिया m1 प्लस m2 को पूरे पे, और m1 प्लस m2 इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये m2 m1g प्लस m2 स्क्वायर g प्लस m2 m1g माइनस m2 स्क्वायर g। सो अब देखो, सॉरी, ये
m1 m2 g plus m2 square g plus m2 m1 g minus m2 square g divided by m1 plus m2. अब ये जो m2 square g और minus m2 square g है ये कैंसिल हो गया. So यहाँ पे m1 m2 और m1 m2 तो twice of m1 m2 g divided by m1 plus m2 ये हमारे टेंशन टी. आ गया समझ ओम? यस सर, आगे। ठीक है. और हम लोगों ने एक और रिलेशन किया था ये वाला जिसमें ऊपर टेंशन टी डैश जो है 2t के बराबर था. तो अगर हम लोग को टी डैश निकालना होगा ट्वाइस ऑफ टी मतलब 2 इंटू 2 टाइम्स m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो ये हो गया 4 टाइम्स m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. लिख लिया मतलब समझ में आ गया बच्चों? Shall we move ahead? Yeah. Okay. तो ये कह रहा है कि एक शॉर्टकट मेथड है नेट पुलिंग फोर्स मेथड. सो इफ ए बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज तो नेट पुलिंग फोर्स निकाल के और टोटल मास से हम डिवाइड कर लेते हैं. तो आप ये देखो कि ये इधर पुल कर रहा है m1g से और ये इधर m2g से बिकॉज m1 इज ग्रेटर देन m2 है ना. So weight of m1 that is m1g is pulling m1 in the direction of acceleration of a. Similarly, weight of m2g is pulling m2 in the direction opposite to the acceleration of a. We can say m1g is pulling force supporting the acceleration and m2g is pulling force opposing the acceleration. So further acceleration is produced in both m1 and m2. So net pulling force we can write m1g minus m2g because m1g is along acceleration and m2g is opposite to acceleration. So ये जो net pulling force है this we can write is m1g minus of m2g divided by total mass m1 plus m2. So ये आ जाएगा m1 minus m2 into g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते थे बट ये बहुत लिमिटेड इसका अप्रोच रहेगा. मतलब सिंगल पुली लगा हुआ है तभी यूज कर पाओगे अदरवाइज तो फिर कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन लिखना ही पड़ेगा. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि ये सिंगल वाला जो रिलेशन को मतलब के जगह यहाँ पे तो यूज कर सकते हैं बट अदरवाइज यू शुड बी यूजिंग दैट जनरल मेथड ओनली बाय राइटिंग द इक्वेशन फॉर बोथ द ब्लॉक्स एंड देन सॉल्विंग. अलग अलग ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे. ओके सो नाउ सो ये तो हम लोगों ने बस इसका बस बेसिकली जो इसको कैलकुलेट करके फटाफट हमको एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ. सेम जैसे अभी हमने किया और टेंशन इन क्लैंप मतलब तुमको टी डैश का वैल्यू निकालना है टी का वैल्यू निकालना है और एक्सेलरेशन का निकालना है ए और बी. ब्लॉक ए का मास 20 kg है ब्लॉक बी का मास 5 kg है तो बी का मास 5 kg और इसका 20 kg. इसका मास ज्यादा है ए का तो इसीलिए ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा. ए का मास एक्सेलरेशन is 6 meter per second square. एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेक्ट. ठीक है. ब्लॉक ए का
The tension is 8. टेंशन 80 न्यूटन है, 8 नहीं है. चेक करो कहीं गड़बड़ कर रहा हो. So we have MAG minus tension T is equal to MA into A. So mass of A is 20. And sir, tension in clamp is 160. Yes, करेक्ट है. दूसरा इसका इक्वेशन लिखते हैं, T माइनस MBG इज इक्वल टू MBA, मतलब T माइनस 5G इज इक्वल टू 5A. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. 20G माइनस T is equal to 20A. T minus 5G is equal to 5A. So when we solve it, minus T and plus T gets cancelled. So 20G minus 5G is 15G is equal to 25A. So this is 150 by 25 is equal to A, or A is equal to 6 meter per second square. Use this here, so we'll get T minus 50 is equal to 5 into 6, or T is equal to 30 plus 50, that is 80 Newton, and T dash is equal to 2T, 2 into 80, that is 160 Newton. Is it clear? Yes, sir. Sir, in finding acceleration, Yes. I directly use that formula m1 minus m2 upon m1 you, plus mtg. you can use, beta, you can use. Why I'm doing it this way is because so that the concept is clear, and this method can be used everywhere, but this has a specific type of question in which you can directly apply. जहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, एक तरफ दूसरा एक मास है, दूसरे तरफ दूसरा मास, तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो. तुमको अगर फॉर्मूलेज याद रहते हैं तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो. मुझे फॉर्मूलेज याद नहीं रहते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सभी बच्चों को भी बताऊं कि इक्वेशंस लिख के करो. ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिख रहा हूँ, ऐसे लिखने में इतना टाइम नहीं लगता है इसको. एक ही बात है, आप यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूलेज एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूलेज एज वेल. इवेंचुअली क्या होगा, 2 साल का सिलेबस करते करते इतने सारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे कि आपको ध्यान नहीं रहेगा फॉर्मूले का, कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज के लिए याद किया था. वहां पे फिर दिक्कत आती है. ये वाला ट्राई कीजिए फटाफट. देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है, फिर तुमको फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बना के करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ करने बैठोगे तो फिर बहुत कंफ्यूज कर जाओगे.
Sir, acceleration in box A is बताइए। equal to acceleration in B plus acceleration in C. हाँ, वो तो रिलेशन है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स अलग अलग आपको जी के टर्म्स में बताना है. What is the net acceleration that's being asked? Relation. Sir, in block A in terms of G, it is G minus bracket में acceleration of B plus acceleration of C. नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू बताना होगा. खैर कोई नहीं. सर उनका कौन सा मास नहीं ना दिया हुआ था एग्जैक्ट. ए बी सी तीनों का मास m दे रखा है ना. m दे रखा है ना. हाँ तो m के टर्म्स में आ जाएगा ना. लेट मी सॉल्व इट, देख लो. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर सबका अलग अलग बनाते हैं तो लेट्स से यहाँ पे जो टेंशन है इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T1 है. यहाँ बीच में ब्लॉक आ गया तो टेंशन चेंज हो जाएगा क्योंकि मास आ गया बीच में, तो टेंशन इसके ऊपर T2 होगा, यहाँ पे टेंशन T2 होगा और इसमें टेंशन T3 है. लेट्स, ठीक है. अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे, सी वाले ब्लॉक का पहले बनाते हैं. सो सबका मास m के बराबर है. सो नीचे एक फोर्स लगेगा mg, ऊपर टेंशन T1 लग रहा है. ये B और C दोनों का मास जो है A से बड़ा है, तो इवेंचुअली ये पूरा ब्लॉक इधर ये A एक्सेलरेशन से जाएगा और ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, है ना. वो तुम उससे भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ C. नाउ T1 और ये mg और नीचे एक्सेलरेशन A, तो हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma, फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बी का बनाते हैं. ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है T2, नीचे एक इसका खुद का वेट mg और एक टेंशन T1 इसको पुल कर रहा है, एक्सेलरेशन A है. सो दिस विल बी इक्वल टू mg प्लस T1 माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू ma. जो डाउनवर्ड फोर्स है mg प्लस T1, अपवर्ड फोर्स T2, तो mg प्लस T1 minus of T2 is equal to ma. Now third free body diagram is of block A. So this is of block B. Block A के लिए बनाएंगे, टेंशन T2 है, इसका वेट नीचे mg है और एक्सेलरेट A से कर रहा है. तो ऊपर का फोर्स बड़ा है, T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma. थर्ड इक्वेशन. अब ये T1 और T2 का वैल्यू, इसमें से T1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जा रहा है mg माइनस ma, राइट. अब T1 का वैल्यू इससे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और T2 का वैल्यू यहां से अगर निकालते हैं, T2 इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ ma, राइट. T2 का वैल्यू इधर से डाल देते हैं इस इक्वेशन में. तो T1 T2 का वैल्यू फ्रॉम 1 2 and 3 हम लोग सॉल्व करके T1 T2 का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा mg प्लस T1 के जगह विल राइट mg माइनस ma, है ना, और माइनस ऑफ T2, mg प्लस T1 माइनस ऑफ T2 माइनस ऑफ mg प्लस ma is equal to ma. So we'll get mg plus mg minus ma minus mg minus ma is equal to ma. mg plus mg plus minus mg plus mg minus mg कैंसिल हो गया. mg इज इक्वल टू ये माइनस ma उधर जाएगा, प्लस ma हो गया, 3ma हो जाएगा. सो m और m कैंसिल हो गया. सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g/3. Is it clear? Sir, I have one confusion. Yes. Sir, in tension T2, why is it same in both of the blocks? Okay. See, this string which is going over this pulley and coming over here, this is the same string, right? And the string is massless. There is no string, there is no mass of the string given, and the pulley is frictionless. So the tension in the whole part of the string from here till here will Yes, remain the same. Sir, same in massless spring.
yes, yes. और If the spring and the string are massless, tension is same on every point. हाँ, एवरी पॉइंट. अब यहाँ पे बीच में एक मास आ गया. इस मास के वजह से द टेंशन विल नॉट रिमेन सेम इन दीज टू पार्ट्स. सो इसमें टेंशन अलग होगा, T1 होगा इस पोर्शन में, बी और सी के बीच में. सर हाँ, सर इतना सर प्रोसेस करने के अलावा सर मतलब ए इक्वल डायरेक्ट एफ बाय एम भी तो कर सकते हैं ना. क्या बेटा? मतलब सर इतना सारा सर इक्वेशन नहीं लिखे हैं यदि, हाँ, तो हाँ. डायरेक्ट यदि लिख लें मतलब कि नेट फोर्स जो लग रहा है और अपन टोटल मास से डिवाइड कर दें सर, उससे भी तो वही आएगा सर. हर जगह तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो ही जाता है. यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तुम इसका मास जोड़ दे रहे हो, लेकिन फिर तुमको जब इसका दूसरा पार्ट में जब टेंशन निकालने बोलेगा, इसके बीच का और इसके बीच का, तो फाइनली ये तो लिखना ही पड़ेगा तुमको. सर यदि सर फिर एक्सीलरेशन का बात आए तो सर वो हाँ, तो तो बस पूरा एक्सेलरेशन मतलब बोला होगा. है. बस एक्सेलरेशन बोला है तो तुम इसका मास जोड़ लो. दोनों का मास कितना हो गया? 2m हो गया. और इधर मास m है. तो नेट फोर्स कितना हो गया? 2mg माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m. ऐसे करके हम लोग g/3 डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ. ठीक है. एक्सेलरेशन बस निकालना है तो इस क्वेश्चन में भी हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ये टेंशन वगैरह भी निकालने के लिए बोला हुआ था, है ना. और फ्री बॉडी डायग्राम भी फिर बनाने बोला गया, इसीलिए मैं ये सारा चीज कर रहा हूं. अच्छा, अब देखो क्या पार्ट बोल रहा है. टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक बी एंड सी. तो ये बी और सी के बीच में हम लोग को टेंशन T1 निकालने बोल रहा है. तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग ये जो ऊपर वाला इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो T1 इज इक्वल टू mg माइनस ma, मतलब mg माइनस mg/3. तो दिस इज इक्वल टू 2mg/3. फिर तुमको ब्लॉक ए और बी के बीच में मतलब टेंशन T2 निकालने बोल रहा है. सो टेंशन T2 इज इक्वल टू mg प्लस mg/3. सो दिस इज इक्वल टू 4mg/3. टेंशन T2 भी निकल गया. क्लैंप होल्डिंग मतलब T3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2 है, मतलब 8mg/3 हो जाए, है ना. ऊपर वाले पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं, सो दिस इज T2 and upward one is T3. So this will be equal to T3 is equal to twice of T2, and then we have solved it. Make free body diagram of block B and write equation of Newton's second law for it. So block B के लिए तो हम लोग को बोला ही है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ही हुआ है. एक्सक्यूज मी सर, Yes, सतप्रीत. इसमें वो टेंशन वाला फॉर्मूला नहीं ना यूज कर सकते हम? कौन सा टेंशन वाला फॉर्मूला? वो जो डायरेक्टली जो था फॉर्मूला? यस सर, डायरेक्टली 2m1 m2. नहीं, वो कैसे यूज करेंगे ना. वो तो T2 के लिए फिर भी तुम यूज कर सकते हो, बट T1 के लिए तो नहीं यूज कर सकते. यस सर, तो T2 फाइंड कर सकते हैं वैसे हम. हाँ, T2 निकाल सकते हैं. फॉर्मूला फिर तुमको बाकी कंफ्यूज ही करेगा, और वहां पे तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे कि यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं. हमने निकाला तो क्या पता सही आया है या नहीं. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि बेसिक्स से लेके चले. और क्वेश्चन कभी भी जो चाहे आईआईटी में आए चाहे नीट में आए, हमेशा बेसिक्स से पूछता है क्वेश्चन. याद किया हुआ वाला ज्यादा कम ही तुमको दिखेगा चीज पूछा हुआ. जो भी क्वेश्चन होगा वो बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फंडामेंटल्स को जो चेक करने के लिए वो लोग पूछते हैं. खैर कोई नहीं, ये लिख लिया सभी ने, मतलब समझ गया सब लोग. आगे बढ़े. यस. अब इसका भी हम लोगों ने बात तो कर ही लिया है कॉन्सेप्ट का. फटाफट इसमें एक्सेलरेशन निकाल, एक्सप्रेशन फॉर देयर एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग. टी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है.
एक्सेलरेशन m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g। नहीं बेटा, यहाँ पे -m2 नहीं होगा, ये देखो टेबल पे रखा हुआ है, लटका हुआ नहीं है, इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। नेट फोर्स यहाँ पे जो है ना वो m1g ही है, m1 माइनस m2 नहीं होगा। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m1 का, तो नीचे एक m1g हो गया, ऊपर टेंशन t हो गया, और इसका एक्सेलरेशन a नीचे हो गया। यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे m2 वाले का, तो टेंशन t है और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो ये सिंपली इसका इक्वेशन लिखेंगे तो t इज इक्वल टू m2a आ जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। सो अब t का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे तो m1g माइनस m2g, सॉरी माइनस m2a इज इक्वल टू m1a। सो m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, और a इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। राइट, ये एक्सेलरेशन हो गया। और टेंशन t निकालना होगा तो डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे m2 इंटू a, मतलब m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है? डिफरेंस आ गया समझ में? यस। तो जो नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा होगा ना, तो नेट फोर्स इस पे एक ही लग रहा है, जो कि ये नीचे की तरफ m1g लग रहा है। तो नेट फोर्स m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। टेंशन में फॉर्मूला नहीं लगा के सीधा ये लगाएंगे कि ये टेंशन t है, मान लो a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो t इज इक्वल टू m2a करके निकाल दे। So that's why I'm saying, it has a limited scope, those formulas. So it is always better to understand the question as per the situation which has been given, and write the equation, solve the equation, and find the answers. भाई ओम और जयशंकर, तुम लोग को मेरी बात सब समझ में आती है ना? ज्यादा मैं इंग्लिश तो नहीं बोलता तुम लोगों के लिए, पता चला ऊपर ऊपर से जा रहा है सब। ओम, कहाँ चले गए तुम? अच्छा, ये लोग डिस्कनेक्ट ही हो गए। Done. So let's move to the next one. Try doing this. सर इसमें ये नहीं बताया मास कौन सा बड़ा है। देखो इसी को m2 को बड़ा मान लो, m2 ग्रेटर देन m1 ऐसा मान लो।
Excuse me, sir. हाँ जी, The acceleration is m2 minus m1 sin theta upon m1 plus m2 into g. करेक्ट करेक्ट बेटा। देखो यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम लोग मान लें ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो ये जो है अब इंक्लाइन के ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाएगा। इस पे एक नीचे फोर्स लग रहा है m1g। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा m1g cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा m1g sin थीटा। इधर टेंशन T लग रहा है, इसमें इधर टेंशन T, इस पे m2g और नीचे आ रहा है। अगर इसका फ्री बॉडी और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन n होगा। अब देखो हम लोग अलोंग द इंक्लाइन अगर हम लोग बात करते हैं, तो पहला इक्वेशन हो गया t माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू m1a, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन लिखे हैं हम लोग m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। इन दोनों को ऐड अगर हम लोग कर देंगे, प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो गया, m2g माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। एक्सेलरेशन a is m2 minus m1 sin theta into g divided by m1 plus m2। अब इसका वैल्यू तुम कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर लो, फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर लो, तो t इज इक्वल टू m1a प्लस m1g sin थीटा। सो t इज इक्वल टू m1a के जगह ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर लो, m2 माइनस m1 sin theta by m1 plus m2 into g plus m1 into, so m1g sin theta plus m1a, so m1a plus m1g sin theta। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा टेंशन t इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर g sin थीटा प्लस m1 स्क्वायर g sin थीटा प्लस m1 m2g sin थीटा डिवाइडेड बाय m1 plus m2। So t is equal to m1 m2g, ठीक है, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर बच्चों? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि दो तीन क्वेश्चन इसी के तरीके के हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है, राइट, और ये वाला भी कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, ये भी आप कर सकते हैं। बस यहाँ तक कीजिएगा, इसके आगे वाला हम कल क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो यू हैव टू डू 3 क्वेश्चंस एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल डू इन द क्लास। Okay. So I think in next class we'll be able to finish. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Okay. Okay. Bye and take care everyone. Thank you, sir.